السلام علیکم۔ میرا یہ آج کا تیسرا لیکچر ہے۔ میں پہلے 2 لیکچر دے چکی ہوں گلوبل سیکیورٹی اینڈ ڈس آرمامنٹ کے اوپر، اور یہ زیادہ لنک کر رہا تھا کہ میں نیکسٹ ٹاپک بھی اسی سے ہی ریلیٹ کرتا ہوں، اور کرنٹ سینیریو میں جو انٹرنیشنل سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے اس میں بھی یہ انتہائی امپورٹنٹ تھا۔ اس وجہ سے میں نے آج اس ٹاپک کو اسٹارٹ لیا ہے کہ گلوبل ریس فار نیوکلیر ڈس آرمامنٹ یا نیوکلیر ڈیٹرنس کے حوالے سے ہے۔ آپ کو جیسے کہ پہلے پریویس لیکچر میں نے بتایا تھا کہ ممالک کی طاقت جو ہے ٹریڈیشنل موڈ میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی کی آبادی کی ڈیموگرافک سچویشن کیا ہے، کسی کی جغرافی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے، کسی کے پاس کس کنٹری کے پاس نیچرل ریسورسز کے حوالے سے کیا اسٹرینتھ ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ ٹریڈیشنل موڈ میں جو ہم دیکھتے تھے طاقت کو، کسی ریاست کی طاقت کو، وہ وہاں کی فوج کی اسٹرینتھ یا اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے حوالے سے، اور اس کا نمبر آف فورسز جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی تھی۔ لیکن 20ویں صدی کے مڈ میں جو ایک نئی طاقت، فوجی طاقت سامنے آتی ہے، وہ ایٹمی ہتھیار ہے، جو 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہر ہیروشیما ناگاساکی پر 3 دن کے وقفے سے بم گرا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب یہ ایک نئی طاقت ہے جو فوجی طاقت ثابت ہوگی کسی بھی ایسے کنٹری کے لیے جس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوگی، اور اس کو برتری حاصل ہوگی کہ وہ کسی بھی اپنے ایڈورسریز کو جو ہے وہ سبڈیو کر سکتا ہے، سرنڈر کرا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جاپان سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب یہ 2 شہر تباہ ہو گئے تو اس کے بعد جاپان نے فوری طور پر سرنڈر کر دیا، اور دوسری جنگ عظیم اختتام کو ہوئی۔ مگر اس طاقت نے جہاں امریکہ کو ایک سپر پاور کے طور پر سامنے لایا، اس طرح یہ بھی ہوا کہ دوسری جانب جو روس، جو اس وقت یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک یو ایس ایس آر تھا، اس نے بھی اس طاقت کو فوری طور پر منظر عام پر لے آیا، اور یوں 2 بڑی طاقتیں، بائی پولر سسٹم دنیا میں سامنے آیا، جو 2 بڑی طاقتیں جن کے پاس نیوکلیر پاور تھا، اور اس نیوکلیر پاور کی موجودگی میں دونوں سپر پاورز نے کولڈ وار کا ٹائم گزارا، اور اس کولڈ وار کے ٹائم میں انہوں نے میوچل ڈسٹرکٹیو ڈیٹرنس کا ایک نظریہ جو تھا اس کو فالو کرتے رہے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ وہ دونوں سپر پاور جو ہیں وہ ایٹمی ہتھیار کی حامل ہیں، اور اگر ان دونوں نے اپنا کسی بھی جنگی ایکسٹریمزم یا ایڈونچر کی کوشش کی تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر پوری دنیا جو ہے وہ تباہ ہونے کے نزدیک ہوگی، بلکہ تباہ ہو جائے گی۔ اور اس ایٹمی اسلحے کو ختم کرنے کے لیے، اس ایٹمی اسلحے کا جو وجود ہے دنیا سے ختم کرنے کے لیے کرنا تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ امریکہ اس کو پروف کر چکا تھا، اور مزید اس کی کوشش تھی کہ اس کو مزید فائل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہمیں اس وقت سخت ہوتی نظر آ رہی ہے یا خطرناک ہوتی نظر آ رہی ہے جب امریکہ کے بیک یارڈ میں کیوبا، جو ایک کمیونسٹ کنٹری تھا اس وقت، اس میں روس نے، یو ایس ایس آر نے اس وقت جو ہے وہاں پر میزائل نصب کرنے شروع کر دیے۔ 1962 کی یہ بات ہے، اور امریکہ کے لیے یہ ایک انتہائی الارمنگ صورتحال تھی۔ پوری دنیا اس پہ الارم ہو گئی، کیونکہ 2 سپر پاور جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے وہ ایک دوسرے کے آئی ٹو آئی ہو گئے ہیں، اور میزائل نصب کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ۔ تو اس میں پھر جسے ہم تاریخ میں پولیٹیکل ہسٹری میں جو ہے ہم اس کو کیوبن کرائسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیوبا کرائسس 1962 جو ہے وہ انتہائی الارمنگ تھا، اور اس میں امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ کس طرح سے سچویشن کو کنٹرول کیا جائے۔ تو انہوں نے سی بلاکٹ کے ذریعے سمندری حدود کی پابندیاں ڈال کر روس کو اس سے روکنے کی کوشش کی۔ لیٹر آن اقوام متحدہ نے پھر اس میں اپنا رول پلے کیا، اور 1970 میں نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT جو ہے وجود میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس NPT میں نان پرولیفریشن ٹریٹی کہ میں دیکھتی ہوں کہ اس میں کچھ شکیں ایسی ہیں جو ممالک کو فری ہینڈ دے رہی ہیں کہ وہ نیوکلیر پاور جو ہے اس کو یوز تو کر سکتی ہیں، لیکن فار پیسفل پرپز کے لیے یوز کر سکتی ہیں، ناٹ فار ویپن پرپز۔ لیکن اور سپر پاورز جن کے پاس یہ طاقت ہے، نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، وہ ٹرانسفر کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ وہ ٹرانسفر کر سکتی ہیں دیگر ممالک کو۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑا مجھے ایک فلیکسیبلٹی جو تھی اس کی ٹرانسفر میں اور اس کے یوز میں جو ہے، بے شک وہ نیوکلیر انرجی کے حوالے سے ہے کہ اس کو انرجی پرپز کے لیے یوز کیا جائے گا یا پیسفل مینس کے لیے یوز کیا جائے گا، وہ اس کو اگر سائڈ پر رکھ دیا جائے تو، کیونکہ آپ یو نیور نو کہ کسی بھی وقت کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ نیوکلیر پیسفل مینس کو ویپنس کی صورت میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے، آگے جا کر میں بتاؤں گی آپ کو کہ اس وقت 9 to 10 کنٹریز جو ہیں
वो कुछ जो है वो डिज्योर हम उनको सुपर न्यूक्लियर पावर कह रहे हैं और कुछ को हम डिफेक्टिव सुपर पावर कह रहे हैं, जो कि इस वक्त डिक्लेयर हो चुकी हैं, जिनके पास इस वक्त हथियार मौजूद हैं। मगर 1970 के इस एनपीटी के माहदे के साथ ही हमने ये देखा कि न्यूक्लियर रेस जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। मसलन यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए हैं 1945 से 1992 के अंदर, इस दौरान 1032 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट की हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने। सोवियत यूनियन ने 1949 से 1990 के दरमियान 715 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 45 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए हैं 1951 से 1991 के दरमियान। आई एम टॉकिंग अबाउट 1991। अभी आप देख लें कि टाइम कहाँ जा रहा है, इस वक्त 20 साल और गुजर चुके हैं। France carried out 210 between 1960 and 1976. South Africa conducted one in 1979. India conducted two nuclear tests in 1998. Pakistan conducted two nuclear tests in 1998 as well. North Korea conducted five tests from 2006 to 2017, जब नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को एनपीटी से 2003 में एक्सक्लूड करवाया कि जी सरेंडर कर दिया कि जी मैं इसका पार्ट नहीं हो सकता एनपीटी का, और उसके बाद 2006 में उसने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। एनपीटी की एक और बात जो मैंने मेंशन नहीं किया आपसे वो ये थी कि उसमें एक और शिक ये भी है कि कोई भी कंट्री, तमाम कंट्रीज इसके मेंबर होंगे एनपीटी के, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, लेकिन इफ एनी कंट्री वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रीटी 3 मंथ्स नोटिस के ऊपर कोई भी कंट्री जो है उससे अपने आप को एक्सक्लूड कर सकता है। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि जी आप फ्री हैंड दे रहे हैं कि एक नॉट, दिस इज नॉट अ कॉमन ट्रीटी, दिस इज अ ट्रीटी टू सेव द ह्यूमैनिटी। उसके लिए इस किस्म की शिक जो है वो रखना मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं था। उसमें जो है वो स्ट्रिक्टनेस और एडहेरेंस टू द ट्रीटी जो था वो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा था क्लॉज के अंदर, इसलिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से 2003 में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को एक्सक्लूड करवाया, और उसके बाद 2006 में उसने अपना पहला टेस्ट कंडक्ट किया, और उसके बाद अब तक 2017 तक उसने 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। अब तक बड़ी ताकतों के अलावा जो डिजियो न्यूक्लियर पावर जिनको हम समझते हैं, उनके अलावा इन ममालिक ने जिन्होंने ये सलाहियत हासिल कर ली है, उन्हें हम डिफेक्टोस न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर कंट्री, न्यूक्लियर होल्डिंग कंट्री आप कह सकते हैं उनको। इन न्यूक्लियर टेस्ट की तादाद ने, आपने जो सुनी है, जो मैंने आपको बताई, ये वाज़ेह कर दिया है कि ममालिक सिर्फ तवानाई के लिए नहीं, बल्कि ताकत और हथियार के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एनपीटी के मंजर आम पर आने के बाद कई ऐसे और मुआहदे भी हुए जिनका मकसद इस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना था, जिनमें कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी भी आता है, सीटीबीटी भी आता है, जिसमें ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी आता है, ट्रीटी ऑन पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी भी आता है, और बहुत सारे इसके अलावा मुआहदे हैं जो इसको रोकने के लिए किए गए। आर्म्स रेस में यहाँ तक कि वो ममालिक भी शामिल हो गए जो नेटो का हिस्सा हैं, जिनकी दिफा की ज़िम्मेदारी अमेरिका ने नेटो फ़ोर्स बनाकर ली हुई है। मसलन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो तमाम जो हैं, उनकी दिफा की ज़िम्मेदारी जो है वो नेटो की है, और नेटो का जो है वो जब जो एक होल्डर है वो अमेरिका है, और अमेरिका की फ़ोर्सेज़, नेटो की फ़ोर्सेज़ जो हैं वो किसी भी यूरोपियन कंट्री पर अटैक का मतलब होता है पूरे यूरोप पे अटैक होगा और उसको डिफेंड करेंगी नेटो फ़ोर्सेज़। उस नेटो फ़ोर्सेज़ की मौजूदगी के बावजूद जर्मन रिव्यू कमीशन था, जर्मन पार्लियामेंट का 2017 में, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि दैट द कंट्री कुड बिगिन फाइनेंसिंग न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम इन द यूके एंड फ्रांस amid growing sentiment that the EU, European Union, cannot rely on US security assurances. Means के अमेरिका के जो दिफा के या अमेरिका के जो यकीन दहानियाँ हैं कि वो यूरोप को डिफेंड करेगा, उस पे अभी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो डाउट में हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि फ्रांस और यूके में जो एटमी सलाहियत को बढ़ाने के जो टेस्ट हैं, जो काम किए जा रहे हैं, या जो उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, उसको इन्हांस कर लिया जाए और उसके ऊपर स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज कर दी जाए। वेल, इस हालात में मैं यही कहूंगी कि जब there is no progress on such treaties for disarmament then its proliferation cannot be stopped. This is what going on in this world nowadays. एक आर्म्स रेस जो है वो चल पड़ी है, क्योंकि कोई भी मुआहदा जो है जब उसका एहतराम नहीं किया जाता, जब उसके ट्रीटी, उसके आर्टिकल्स को एडहेयर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करती नेशंस, तो फिर उसके हवाले से
फर्दर प्रोग्रेस को जो है वो मिनिमाइज हो जाती हैं और उसके साथ जो उसके अपोजिट डायरेक्शंस होती है वो मूव करती है। करंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिलसिले में बात करती चलूं कि करंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैड विथड्रॉन from American deals agreement concluded in Obama time to restrain Iran from enriching uranium for weapons or nuclear missiles. या ईरान के साथ जो ओबामा दौर में एग्रीमेंट हुआ था कि ईरान के ऊपर रिलैक्सेशंस करने के लिए उसकी इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाई हुई हैं अमेरिका की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो लगी हुई हैं फॉर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए और ग्लोबल ट्रेड में ईरान को ज़्यादा शेयर देने के लिए ये डील की गई थी कि ईरान जो है वो इसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेगा और इसको मजीद जो है उसके सैंक्शंस को रिलैक्स करें, उसमें इकोनॉमिक ग्लोबल ट्रेड में जो उसको पार्ट दिया जाए। तो दैट वाज अ गुड पॉइंट और उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं, अमेरिका भी था और ईरान भी था और दे एग्रीड अपॉन और आईएई के अंडर में ये डील हो गई थी। मगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने अपने इलेक्शन पीरियड में अपना प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन के अपने इलेक्टोरेट के साथ, तो उसके मुताबिक उन्होंने उससे अपने आप को विड्रॉ किया, जो कि एक मैं समझती हूँ कि सही नहीं है, क्योंकि करंटली अगर आप नॉर्थ कोरिया को कंटेन करना चाह रहे हैं, अमेरिका कंटेन करना चाह रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू have such agreement or treaties with the North Korea as well, because when you are not going to respect your own concluded treaties, how you can go for further future treaties with the other countries and how that they can be effective. मगर इसके साथ एक तो इसका ये हुआ कि ईरान पे डील से अमेरिका ने अपने आप को अलग किया है, बल्कि उसके ऊपर मजीद पाबंदियां भी ऐड कर दी गई हैं। लेकिन इसके साथ दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अमेरिका के जो एलाइज हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं, वो इसको जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देख रहे और उसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियन जो हैं वो आई हैं कि जी ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो है वो बहुत सारे इंटरेस्ट जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं यूरोपियन यूनियन के एलाइड विद ईरान, वो भी अब मुतासिर होंगे और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस चीज़ को जो है उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। फिर इसमें अगर फर्दर मैं बात करूं तो अगर हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इसका एक और एस्पेक्ट भी है जिसकी वजह से इसकी मैं समझती हूँ कि प्रोलिफरेशन को रोका नहीं जा सका, वो ये है कि इसको एनर्जी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी अदर देन ऑयल, जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जिनका यूज जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट कर रहा है, उसको रोकने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, यानी क्लीन एनर्जी जो है वो हासिल करने के लिए और फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी सोर्स हासिल करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जा रहा है। उसके लिए इवन न्यूक्लियर एसोसिएशन ने बताया कि करंटली दुनिया में इस वक्त 447 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, और 30 कंट्रीज जो हैं वो फर्दर जो है वो इसको हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। और जिसमें सऊदी अरब की जो है वो बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने $80 बिलियन का कॉस्ट जो है वो 16 न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो बिल्ड करने के लिए 20 से 25 ईयर्स के अंदर जो है, फर्दर 20 से 25 ईयर्स के अंदर उनके 80 बिलियन के साथ 16 न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो बिल्ड हो जाएंगे वहां पे। और इसी तरह से यूएई जो है वो भी इसी तरफ जा रहा है, जो कि मैं ये समझती हूँ कि वो ऑलरेडी रिच रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं, इनके पास ऑयल की बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, लेकिन वो भी 20 बिलियन जो है वो डॉलर जो है वो बिड कर रहा है साउथ कोरिया के साथ फॉर बिल्डिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट्स बाय 2020 तक उनका मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस एनर्जी के एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं तो दुनिया जो है वो इस तरफ जा रही है कि आप उसको किसी भी टाइम जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, आई एम नॉट साइंटिस्ट बट सो फार एज आई नो कि जी न्यूक्लियर फिजन जो है वो एनर्जी को क्रिएट करने के लिए होता है, और जब एटम्स को जब आप सेपरेट करते हैं तो वो उसका फिजन जो है वो उसको एनर्जी क्रिएट करता है, लेकिन फ्यूजन जो होता है जब आप उस एटम को बड़ा करते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि आप उसको एज अ वेपन जो है वो यूज करते हैं। दिस इज अ लिटिल आई थिंक नॉलेज विच आई है, बट yes, energy is a point where we can say that proliferation could not be successfully done. और इस एनर्जी रिसोर्सेज को हम किस तरीके से जो है वो एंड कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज को अगर हम सोलर के साथ चला लेते हैं, एनर्जी क्राइसिस को अगर हम सोलर एनर्जी से मीट कर सकते हैं, मसलन सऊदी अरबिया जो है अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को के लिए $80 बिलियन खर्च ना भी करता, तो उसके पास सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स मौजूद है, क्योंकि हॉट कंट्रीज हैं, यूएई हॉट कंट्री है, इसके अलावा उनके पास ऑयल का बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, अल्टरनेट रिसोर्स मौजूद है उनके पास,
दे शुडंट गो फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे ये होगा कि रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी। ईरान ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है, और फिर सऊदी अरब जो है वो भी इसमें शामिल हो गया है। तो बट यू विल से दैट कि एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस की तरफ आप जा रहे हैं इस रीजन के अंदर भी। इसी तरह से फार ईस्ट में जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया जो है वो एक ट्रबल बना हुआ है फॉर जापानीज एंड फॉर ईस्टर्न कंट्रीज के लिए और साउथ कोरिया के लिए। सिमिलरली जो है वो इसराइल की तरफ अगर हम जाते हैं तो पैलेस्टाइन में जो है, और इसराइल जो है जिस तरह से न्यूक्लियर पावर को अपनी रिटेन बना रहा है और अपनी उसने कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, तो वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, इसी तरह से सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर आप आ जाते हैं तो वहाँ पे अर्जेंटीना है, जो चेचनिया है जैसे, तो वो भी जो है इस तरह की जो है। और इसके साथ साथ एक और अलार्मिंग पॉइंट को ये आपने जेहन में रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी बेशक क्लीन है, लेकिन जब इसका भी वेस्टेज जो होता है उसको भी स्टोर करना, उसको भी प्रॉपरली जो है वो डिस्पोज ऑफ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो भी बहुत बड़ा डेंजरस साबित हो सकता है। फिर करंटली जो मैं जब आपको लेक्चर दे रही थी पीछे ग्लोबल सिक्योरिटी के हवाले से, तो मैंने आपको एक एसिमेट्रिक पावर बताई थी। मैंने एक पॉइंट बताया था कि एक पावर का एक डायनामिक ये भी है कि एसिमेट्रिक पावर इस वक्त वर्ल्ड में काम कर रही है। एसिमेट्रिक पावर क्या है कि जिसमें आप एक नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जैसे ग्रुप्स हैं, अपने मकासद को हासिल करने के लिए वो थोड़ी सी तादाद में होते हैं, मगर वो अपने उस रिसोर्स को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो बड़ी सी बड़ी ताकत को हिला देते हैं। जिसमें मैंने 9/11 का वाक़या आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको सुल्तान का वाक़या बताया था कि किस तरह से अपने इंटरेस्ट को वाच करते हुए वो बड़ी-बड़ी ताकतों के सिस्टम्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जब आप एस्टेब्लिश करते हैं मुल्क के अंदर, तो उसमें उनकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा कंसर्न बन जाती है। एंड सेकेंडली, इसका जो यूरेनियम का न्यूक्लियर के जितना भी फर्दर जो उसके अंदर मटेरियल यूज होता है, उसकी होल्डिंग एंड स्मगलिंग को जो है वो आप नहीं रोक सकते। वो डेंजरस सिचुएशन की तरफ जो है वो कंट्रीज जो है, वर्ल्ड जो है इस वक्त जा रहा है। इसकी रिकमेंडेशन के हवाले से मैं यही कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैं पहले कह रही थी आपको कि मुझे इस बात से कतन वो नहीं है कि न्यूक्लियर जो है वो आर्मामेंट जो है उसको जो है वो कंटेन नहीं किया गया ड्यू टू दैट आर्टिकल्स, बट उसमें ये है कि कंट्रीज को जो है वो एडहियर करना चाहिए, पॉलिसीज के साथ एडहियर करना चाहिए, बट जो मिनिमम लेवल ऑफ डिटरेंस जो है अगर हासिल कर लिया तो दैट्स इनफ फॉर फॉर द कंट्रीज। ये आप ऐसा नहीं है कि आप बुलेट्स इकट्ठी कर रहे हैं, ये आप ऐसा नहीं है कि आप बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं, या आप मिसाइल इकट्ठे कर रहे हैं। आप इसको अगर मैं ये कहूंगी कि अगर आप इसको इसका पाइल करेंगे, हॉरिजेंटली करें या वर्टिकल करें। प्रोलिफरेशन दो तरह की होती है, वर्टिकल होती है, हॉरिजेंटल होती है। वर्टिकल प्रोलिफरेशन जो होती है वो कि मिसाइल्स का पाइल जो है वो इकट्ठा करते जाए, मैक्सिमम नंबर 1000, 2000, 3000, 4000, लेकिन ये वर्टिकल प्रोलिफरेशन होता है। फिर इसका हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन ये होता है कि आप फिर उस असले को या उस वेपन को जो है, या उस जो हार्मफुल आपके ने एक वेपन डेवलप कर लिया है, उसको आप हॉरिजेंटली पब्लिक के अंदर, पीपल के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, जो किसी भी कंट्री के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, उनमें अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मीन्स के वो इलीगल मीन से आप नहीं करते, लेकिन इलीगल मीन से वो यूज हो जाते हैं और वो आपके हाथ से निकल जाते हैं, तो दैट कैन बिकम अ डेंजरस पॉइंट फॉर other for the whole world and for other countries as well and for the generations coming. रिकमेंडेशंस के लिए इसके साथ एक थोड़ा सा एलिमेंट मैं न्यूक्लियर एनर्जी को दोबारा डिस्कस करना चाहूंगी, थोड़ा सा एक और पॉइंट भी दूंगी और साथ ही रिकमेंडेशन दूंगी मैं अपने अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।